The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ والا درشکو، اللہ تبارک و تعالیٰ نا فضل و کرم تھی અને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વાલિહી વસલ્લમના સદકા ફેલ તમારી સમક્ષ તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો ગુજરાતી કાર્યક્રમ લઈને હાજર થયા છીએ। મને આશા છે કે આ કાર્યક્રમને તમે ખૂબ જ સારી રીતે સાંભળશો, જોશો અને તમે પ્રશ્નો પણ અમને ફોન દ્વારા પૂછશો। આજના કાર્યક્રમમાં જે પ્રમાણે પાછલા કાર્યક્રમોમાં હઝરત અલ્લામા મૌલાના મોહમ્મદ યુનુસ મિસબાહી સાહેબ પધારી ઉત્તરો આપે છે, એ જ પ્રમાણે આજે પણ હઝરત અલ્લામા મૌલાના મોહમ્મદ યુનુસ મિસબાહી સાહેબ પધાર્યા છે અને તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો કુરાન અને હદીસના ઉજાસમાં અર્પણ કરશે। તો આવો સૌપ્રથમ આપણે હઝરતના આભારી થઈએ, એમની સેવામાં આપણે સલામ રજૂઆત કરીને ત્યાર પછી તરત જ જે પ્રશ્નો પાછલા કાર્યક્રમમાં બાકી છે તેને ઉપર આપણે વાત કરીશું। અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તઆલા વબરકાતુહુ। હઝરત ખૈરિયતમાં છો તમે? તમે પધાર્યા તે બદલ તમારો આભારી જ છું। અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમારા ઇલ્મ અમલમાં બરકતો અતા ફરમાવે। તો હઝરત ગઈકાલના પણ અમુક સવાલો બાકી છે મારી પાસે, અને લગભગ ગયા કાર્યક્રમના અંદર પણ આપણા અમુક સવાલો હતા। તો મારે આપણે એમ કે ગઈકાલે જે બેને સવાલો કરેલા, ઇફ્તિખારભાઈ જર્મનીથી સવાલ પૂછેલા, મિસિસ એજાઝ લંડનથી સવાલ પૂછેલો અને શકીલભાઈ લંડનથી, એ પણ બાકી છે। તો હું ચાહું છું કે પહેલાં એમના સવાલો થઈ જાય પછી આપણે આજના કાર્યક્રમમાં લાગતા લોકોના સવાલો લઈએ। તો વાલા દર્શકો, આજે તમારે ચૂપ રહેવાની જરૂરત નથી। કાર્યક્રમ જોતા જોતા તમારે પ્રશ્નો પણ જરૂર અમને કરવાનો, જેથી તમારા એક પ્રશ્નોથી હજારો લોકોનો ફાયદો થઈ શકે છે। हज़रत इफ्तिखार साहब जर्मनी से फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान अगर 2 मरतबा या 3 मरतबा कोई शख्स हाथ उठाता है या अपने कपड़ों से खेलता है या दाढ़ी से खेलता है तो क्या नमाज दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाना इदरीस रज़ा क़ादरी साहब, હું તમારો શુક્રગુજાર છું કે તમે મને આ પ્રોગ્રામમાં દાવત આપી અને લોકોના સવાલોનો જવાબ આપવાનો મોકો આપ્યો। અલ્લાહ તબારક વ તઆલા મને હક કહેવાની અને સર્વેને હક સાંભળવાની અને સર્વેને અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે। આમીન અલ્લાહુમ્મા આમીન। હા, એમનો જે સવાલ છે तो उर्दू में तो सवाल उर्दू में है तो जवाब भी उर्दू में दे दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनका ये सवाल है कि 3 मरतबा खुजाना, तो उसके लिए कायदा ये है शरीयत मुतहरा का कि एक रुकन यानी एक फ़र्ज़, जैसे क़ियाम है, रुकू है, सिजदा है, इस तरीके से कायदा अखीरा है, तो इन सबको रुकन कहा जाता है। तो एक रुकन में अगर आदमी 3 मरतबा इस तरीके से खुजाए कि जहाँ उसने हाथ रखे हैं वहाँ से उठा करके लाए और खुजाए और उसके बाद फिर हाथ रख दे और फिर लाए खुजाए फिर हाथ रख दे,
फिर लाए खुजाए, फिर हाथ रखे। तो एक रुकन में अगर आदमी हाथ रख के फिर उठा कर लाकर 3 मरतबा यूं खुजाए तो उसको शरीयत में अमल कसीर कहा जाता है, यानी उसने ज़्यादा वर्क कर लिया या ऐसा काम कर लिया कि उसकी वजह से अगर कोई आदमी दूर से उसे देखता है तो उससे ये पता चलेगा कि यह आदमी नमाज में नहीं है, चूँकि बार बार खुजा रहा है। तो शरीयत मुतहरा का कानून नमाज में अमल कसीर के सिलसिले में ये है कि अगर एक रुकन में आदमी 3 मरतबा खुजाए, और 3 मरतबा का मतलब ये है कि खुजा करके हाथ रख दे और फिर उठा करके लाए। इस तरीके से अगर एक मरतबा उसने हाथ उठाया और उसमें अगर उसने 25 मरतबा भी खुजा दिया हो तो वो एक ही मरतबा माना जाएगा, उसको 25 मरतबा नहीं कहा जाएगा। तो फिर इस तरीके से अगर है तो 3 मरतबा कर लिया जाए तो अमल कसीर है, और 3 से कम किया जाए तो अमल कलील है। अमल कलील सिर्फ मकरू में जाता है, नमाज हो जाती है, और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। लिहाजा नमाज पढ़ने वालों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपने कपड़े वगैरह से खेलना भी नहीं चाहिए और इस तरीके से बार बार खुजाना भी नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत हमारे साथ जो है तशरीफ़ फरमाए। नसीम बहन ब्रैडफोर्ड से पूछते हैं, क्या सवाल फरमाती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, आपकी दुआएं, अल्लाह पाक का करम है। जी भाई साहब, मैंने एक नाक का मतलब पूछना है जी। हसनैन का मतलब और हाफिजा का मतलब पूछना है जी, पूछे ना आप। जी, हसनैन का मतलब बता दें आप और हाफिजा का मतलब बता दें। हसनैन जी, हसनैन और हफीजा। हफीज़ा, हफीज़ा या हफीज़ा, हफीजा। हफीज़ा। ठीक है, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उनको नेक और साले बनाए और अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमाए अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में। आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने फ़ोन किया। बताते हैं आपको, प्रोग्राम को देखते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ज़रूर आपकी बारी आएगी तो आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। वाला दर्शकों, ज़रूरत है તમારા પ્રશ્નોની, તો તમે જેમ બને તેમ જલ્દી અને ઉતાવળથી તમારા પ્રશ્નો પૂછી અમને શુક્રિયાનો મોકો આપશો। ठीक, तो हज़रत एक ही रुकन में अगर 3 मरतबा ऐसा किया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ। और 2 मरतबा है तो मकरूह है। 2 मरतबा में मकरू है, मतलब नमाज हो जाएगी उसकी। ठीक, अब बहुत ज़रूरत है तो सिर्फ एक बार खुजाना चाहिए, ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। और दूसरा सवाल उन्होंने ये फरमाया था कि गुस्ल के दरमियान घरघरा करना या नाक में पानी डालना क्या ज़रूरी है? घरघरा करना तो ज़रूरत में नहीं है, लेकिन कुल्ली करना, कुल्ली का मतलब है कि मुंह में पानी डालना और इतना पानी लेना कि मुंह के हर हिस्से में जो हमारा हलक है वहाँ तक का जो हिस्सा है, जो मुंह का हिस्सा माना जाता है, तो ये गुस्ल के सिलसिले में उसका हुक्म ज़ाहिर बदन का है, तो उसमें हर जगह पर पानी पहुँच जाना चाहिए। अगर बगैर घरघरा के भी अगर पानी वहाँ तक पहुँच जाता है तो घरघरा करना ये ज़रूरत में नहीं है, बल्कि अगर आदमी का रोज़ा है तब तो घरघरा करने को मकरू और मना करार दिया है कि उसमें फिर आदमी के हलक के नीचे पानी चले जाने का अंदेशा है। लेकिन अगर किसी का रोज़ा नहीं है तो ऐसी सूरत में उनको क्या है, वो घरघरा करना चाहिए, मगर ये सिर्फ मुबालगा में शामिल है कि आदमी की कुल्ली में वहाँ हलक तक का कोई हिस्सा न रह जाए, इसलिए इसको शामिल किया गया है, वरना ये फ़र्ज़ में घरघरा नहीं है, कुल्ली फ़र्ज़ में शामिल है। ठीक, तो हज़रत हमारे साथ मिसिस नासिर हैं लंदन बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। અને મૌલાના યુનુસ સલામ અલૈકુમ। वालेकुम सलाम। મારો સવાલ એ હતો કે અગર વાઇફ પોતાના શોહરની ઇજાજત વગર એબોર્શન કરાવી લે તો औरत માટે એનું પનિશમેન્ટ શું છે અને શોહર માટે સબર કરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો એના માટે ખરો? ठीक, माशाअल्लाह। बीजो कोई सवाल? નહીં, પ્લીઝ બસ જઝાકલ્લાહ ખૈર। ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા નાસિરભાઈ જરૂર તમને બતાવવામાં આવશે। ઘણો અગત્યનો તમારો પ્રશ્ન છે, ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા જરૂર તેની પર વાત કરીશું। ठीक, तो हजरत नाक में पानी डालना है? नाक में पानी डालना भी फ़र्ज़ में शामिल है। नरम हड्डी जो हमारी है नाक की, जिसको हिलाने से हिलती है हड्डी, वहाँ तक पानी डालना पहुँचाना ये ज़रूरत में शामिल है, और खींच के थोड़ा ऊपर चढ़ाया जाए तब भी ये एहतियात के हिसाब से उसका हुक्म लगाया जाएगा। उसमें
ہر بال پر پانی پہنچ جانا بھی ضرورت میں شامل ہے، اور قرآن شریف سے اس کا حکم ہے، چونکہ قرآن میں آئے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو. تو یہ مبالغہ ہے، خوب طہارت حاصل کرو. اور خوب طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کو بھی ظاہر بدن کا حکم حاصل ہو جائے اسے اس طہارت میں شامل ہونا چاہیے، تب اس مبالغہ پر عمل ہوگا. تو ناک کا یہ نرم جو حصہ ہے نا وہ بھی آؤٹ سائڈ باڈی کے اندر شامل ہے، اور اسی طریقے سے منہ کا جو اندر کا حصہ ہے وہ بھی آؤٹ سائڈ باڈی کے اندر شامل ہے، چونکہ روزے کی حالت میں جو اس کو اندر کا حکم دیا ہے مگر اس کے علاوہ دوسرے حصوں میں اس کو باہر کا حکم دیا جاتا ہے. تو جو باڈی کا حصہ سم ٹائمز وہ اندر میں جاتا ہے، سم ٹائمز وہ باہر میں آتا ہے. تو ایسی پوزیشن میں قرآن کے اس آیت کا مبالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ظاہراً جس کو کبھی بھی حکم دیا جاتا ہو اسے بھی اپنے غسل کے اندر شامل کر لو. اس لیے ہمارے علماء نے کلی کرنے کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو یہ فرض میں شامل فرمایا. جی بہت خوب. اور حضرت کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر بغیر وضو کیے غسل کر کے فوراً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے اولاً تو وضو کا جہاں تک سوال ہے تو جو اعضاء وضو میں دھونے کے لیے یا مسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ چاہے قصداً دھویا جائے یا بلا قصد دھویا جائے، وضو کے اندر نیت کی شرط نہیں ہے. لہٰذا ہمارے یہاں اگر کسی آدمی نے کسی بھی طریقے سے غسل کر لیا اور وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وہ غسل میں دھونا پا لیا گیا تو پھر ایسی صورت میں الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ڈائریکٹ بھی اس غسل سے ہو جائے گی. مگر وہ وضو جو ہے جس میں نیت نہیں کی گئی ہے وہ وضو سنت کے خلاف مانا جائے گا، اور سنت کے خلاف وضو ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے تاکہ سنت کے مطابق وضو ہو اور پھر نماز پڑھی جائے. لیکن فرض کی جہاں تک ادائیگی کی بات ہے تو غسل کے اندر وہ اعضاء شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ٹھیک. مسز اعجاز نے کل سوال فرمایا تھا کہ فجر کے وقت میں تحیۃ الوضو نماز اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اور حالانکہ یعنی طلوع فجر کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے شروع ہونے سے لے کر کے اس کا وقت پورا ہونے تک یہ قضا نماز وغیرہ تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل وغیرہ کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ فرائض کے نہ پڑھنے کے لیے تو 3 ہی وقت بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ نوافل نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے کل 12 اوقات ہیں. تو 12 میں سے 5 وقت ایسے جو نارملی روزانہ جو ہے وہ معمول کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، جیسا کہ فجر کی نماز کا پورا وقت ہے، اس میں کسی بھی نفل کی گنجائش نہیں ہے. صرف جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے وہ بھی فرض سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد میں نہیں. اور اسی طریقے سے عصر کا پورا جو وقت ہے اس میں قضا تو پڑھ سکتے ہیں لاسٹ 20 منٹ بیفور، لیکن عصر کی نماز کے فرض کے بعد میں کسی بھی نفل کی گنجائش نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد کیا تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کا شمار یہ سنت غیر مؤکدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان اوقات میں اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا پل صراط پر شیطان ہمیں پریشان کرے گا؟ جس طریقے سے صراط پر شیطان کی بات نہیں ہے، قبر میں جہاں تک ہے تو اس کا ذکر آیا ہے روایت میں کہ بھئی قبر میں بھی شیطان آتا ہے اور جب سوال کرتا ہے مر ربوں کا تو وہ شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے میت کو کہ تو کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں. تو اس طریقے کی روایتیں موجود ہے. رہ گیا عالم قیامت کا مسئلہ تو وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے، تو پھر وہاں اس کی سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور اس سے قیدی بنا لیا جائے گا. اس کا مطلب شیطان جو دنیا میں بھی پریشان کرتا ہے عالم برزخ میں بھی پریشان کرنے ہاں قبر تک کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنہ و فساد سے بچائے. ٹھیک. حضرت شکیل بھائی نے لندن سے کل سوال فرمایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اس جگہ پر نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں اس میں کسی کی داڑھی نہیں ہے، اور ہم لوگ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ بھی
क्लीन शेव होता है, दाढ़ी उसकी नहीं होती है, तो क्या ऐसे शख्स के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? मुक्तदी भी दाढ़ी बगैर दाढ़ी के हैं और इमाम भी बगैर दाढ़ी का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फासिक के पीछे नमाज अदा करने का सवाल है तो इसमें फासिक को आगे बढ़ाना यानी उसको इमाम बनाना, ये दर हकीकत इमामत का जो मनसब है वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम का मनसब है, और हुजूर की नियाबत में हुजूर ने लोगों को इजाज़त अता फरमाई कि वो लोग भी इमाम बन सकती हैं और नमाज पढ़ा सकते हैं। तो ये जो मकाम है वो काबिल इज़्ज़त मकाम है, और काबिल इज़्ज़त मकाम और काबिल तकरीम मकाम के ऊपर उसी को खड़ा किया जाएगा कि शरीयत मुतहरा के एतबार से जो आदमी काबिल इज़्ज़त हो, और अगर वो आदमी शरीयत के कानून में काबिल इज़्ज़त नहीं है तो फासिक लोग भी उसे अपना इमाम नहीं बना सकते। कानून तो यही है कि फासिक न फासिक का इमाम बन सकता है, न फासिक किसी गैर फासिक का इमाम बन सकता है, दोनों के लिए, इसलिए कि वो तकरीम का मकाम है और उसे आगे बढ़ाना तकरीम में शामिल है, और न फासिक को इजाज़त है कि वो किसी फासिक की तकरीम करे, न गैर फासिक को इजाज़त है कि वो उसको तकरीम की जगह पर रखे, इसलिए नहीं है। लेकिन जहाँ तक फ़र्ज़ नमाज की अदायगी का सवाल है कि नफ्स फ़र्ज़ अदा हो जाना, बहरहाल नमाज मकरूह तहरीमी तो होगी, सवाब के पल्ले में नहीं जाएगी, लेकिन जहाँ तक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाल है तो हदीस पाक में मौजूद है। ये हदीस जो अपने मिशकात है उसमें कई हवाले के साथ में लिखी गई है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमा कि सल्लू अला कुल्ल फाजिरिन व सल्लू खल्फ कुल्ल फाजिरिन, कि हर फाजिर की, हर गुनहगार की नमाज जनाजा पढ़ो और हर फाजिर के पीछे भी नमाज अदा करो। तो इस हदीस से उलमा किराम ने इतना मसला सिर्फ बताया है कि जहाँ तक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाल है तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक तकरीम का सवाल है तो तकरीम फासिक की जायज़ नहीं है। इस वजह से उसके आगे बढ़ाने से लोगों की नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ये हुक्म सब के साथ में मुताल्लिक़। ठीक, कुछ ये कहते हैं कि भाई फासिक के पीछे फासिक की नमाज हो जाएगी, तो क्या ये सही? नहीं, फासिक के पीछे गैर फासिक की भी नमाज हो जाएगी, मगर उस नमाज का मतलब ये कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा हो जाएगा कि अल्लाह के यहाँ जो आपका एक ज़िम्मा है फ़र्ज़ की अदायगी का, वो चाहे किसी भी मुस्लिम के पीछे आप पढ़ेंगे तो आपका ज़िम्मा अदा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाब के पल्ले में जाना है, उस नमाज का काबिल कबूल होना है, तो वो नहीं होगा और उसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। हमारे साथ स्वीडन से बहन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाओ। जी मेरे पास दो सवाल हैं। एक ये कि हम आयत करीम का ख़त्म करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो सवाल ये है कि जब हम वो करते हैं तो जगह चेंज कर सकते हैं या एक ही जगह पे बैठ के करना चाहिए? कितनी मरतबा ये आयत करीमा का वजीफ़ा आपने पढ़ना है? मुझे लगता है 1,24,000 25,000। 1,25,000 सवा लाख मरतबा ना? जी ठीक, तो कितनी औरतें मिलकर पढ़ सकती हैं ये पूछने एक ही जगह पर, या फिर चंद औरतें मिलके जो हैं 2 दिन में, 1 दिन में अलग अलग जगह पर, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बैठ के पढ़ते हैं ना, तो सवाल ये कि एक ही जगह पे पढ़ना चाहिए, जगह चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? ठीक। और दूसरा ये कि जो हम नशीद और नात सुनते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के साथ बंदा सुन सकता है? ठीक जी ठीक। ठीक, बताते हैं आपको। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक, तो દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને મારી અપીલ છે કે તમે જરૂરથી આજના કાર્યક્રમના અંદર તમારા પ્રશ્નોને અમારા સુધી પહોંચાડો। જે પ્રમાણે તમારી સ્ક્રીનના ઉપર ટેલિફોન નંબર આપેલો છે, ઈમેલ એડ્રેસ આપેલું છે। અગર તમે તમારી આવાજ પહોંચાડવા નથી માંગતા તો તમે ઈમેલ પર કરી શકો છો, અને ટેક્સ્ટ નંબર પણ આપેલો છે, તો તમે ટેક્સ્ટ પર કરીને તમારા મનની વાત અમારા સુધી પહોંચાડી શકો। તો હું તમારાથી એવી આશા રાખું છું કે તમે લાઇનને થોડી વારમાં ઘણી જ બિઝી કરી આપશો અને ઘણા જ તમે બધા પ્રશ્નો પૂછશો, જેથી શરીયતનું તમને જ્ઞાન મળે, નોલેજ મળે, ઇલ્મ મળે, અને આપણી પર ફરજ છે। ઠીક, तो हज़रत ऑफ़े कल हमारी बहन ने सवाल किया था कि नमाज में शैतानी वसवसे आते हैं तो क्या करना चाहिए।
क्या ऐसे शैतानी वसवसे जो आते हैं जिससे नमाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, शैतान का काम है वसवसे डालना, तो शैतान तो अपना काम करता ही रहेगा, इस वजह से कि उसे मालूम है कि आदमी नमाज पढ़ रहा है और मैं उसमें वसवसा नहीं डालूंगा तो उसकी नमाज के सवाब को मैं कम नहीं कर सकता हूँ। मगर वो सवाब कम कब करेगा? जबकि आप उसके वसवसों की तरफ तवज्जो करना चाहेंगे। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो उन वसवसों और ख्यालात की तरफ तवज्जो ना करे। वो चीज़ जो उसकी चल रही है हत्तल वसा उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर नहीं रुकती है तो उसकी वजह से अपनी नमाज में कोई कमी महसूस करने की वो कोशिश ना करे। चूँकि वो ऐसा इसलिए करता है कि आदमी को एक मरतबा सताएगा, चलो उसने नमाज पढ़ ली, फिर दूसरी मरतबा सताएगा तो नमाज पढ़ ली, और तीसरी मरतबा सताएगा फिर कुछ कमी, इस तरीके से फिर आदमी ये सोचता है यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी तवज्जो तो अल्लाह की तरफ रहती नहीं है, मेरे दिमाग में तो ऐसे ख्यालात आते रहते हैं, तो ऐसी नमाज का हासिल क्या, इससे फ़ायदा क्या। तो इस तरीके से आदमी आहिस्ता आहिस्ता नमाज छोड़ देता है उन ख्यालात की वजह से। तो शैतान का काम ही वही है कि वसवसे डाल करके आपको इस तरीके के शुबहे में डालना कि आप आहिस्ता से नमाज छोड़ दो। लिहाजा हमारे उलमाए किराम ने खुद फरमाया, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम से इसके खुद रिवायतें मरवी हैं कि हुजूर से भी सहाबाए किराम ने पूछा तो हुजूर ने यही फरमाया कि शैतान का काम है वो करता रहे, तुम्हारा काम है तुम नमाज पढ़ते रहो। इसलिए कि जहाँ वो पाता है आदमी को कि वहाँ कुछ मिल सकता है तो आदमी को जानबूझ के वो सताने की कोशिश करता। लिहाजा उन लोगों को किसी भी तरह से शैतानी वसाविस की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, हत्तल वसा रोकना चाहिए। तो उसके लिए फरमा गया भाई नमाज शुरू करो तो तहारत अच्छी तरीके से कर लो, इसलिए कि तहारत अच्छी रहती है तो फिर ऐसी सूरत में शुबहात कम हो जाते हैं। और फरमा गया कि तुम अगर पढ़ते हो तो मानी के ऊपर गौर करो कि भाई आप उसका मतलब क्या है। मैं सुबहान रब्बिल आला या सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ता हूँ या सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनका मीनिंग याद कर लेना चाहिए और तवज्जो उसके मीनिंग के अंदर जानी चाहिए। तो आदमी को जब दूसरा मौका मिलता है तब तवज्जो दूसरी तरफ जाती है। अगर वो मीनिंग के ऊपर गौर करेगा या मखारिज के ऊपर गौर करेगा, अदायगी पर गौर करेगा, सुन्नतें इसके बाद कौन सी है उस पर अमल करना है, इन चीज़ों पर गौर करेगा तो आदमी की तवज्जो नमाज में रहेगी तो दूसरे ख्यालात कम आएंगे। मगर इन चीज़ों पर हमारी तवज्जो नहीं है ना, इस वजह से फिर ख्यालात बढ़ जाया करते हैं। लिहाजा लोगों को ये ट्राई करनी चाहिए। ठीक, बहुत खूबसूरत। और आखिर में हज़रत कल एक हमारी फ्रांस से बहन ने सवाल किया था, उसको भी हम ज़ेरे बहस ले ही लेते हैं ताकि कल के सवालात मुकम्मल हो जाएं। सलातुत तस्बीह चंद औरतें मिलकर पढ़ती हैं, जिसमें एक औरत जो है बुलंद आवाज़ से पढ़ती है जैसे इमाम पढ़ता है, और बाकी औरतें उसके पीछे जो लाइन में खड़ी हैं वो सुन रही हैं। तो क्या इस तरीके से औरत का बुलंद आवाज़ से तस्बीह पढ़ना और बाकी औरतों का खामोश रहना, जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, इस तरह नमाज पढ़ना औरतों के लिए दुरुस्त है सलातुत तस्बीह की नमाज? नहीं, जहाँ तक औरतों के लिए नमाज का सवाल है तो औरतें अगर जमात के साथ में नमाज अदा करती हों फिर भी उनको जहरी किरात की इजाज़त नहीं है कि उनकी आवाज़ दूसरों तक जा सके, या शुबहा भी हो कि दूसरे सुन सकेंगे तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, नमाज और जहाँ तक उनकी जमात का सवाल है तो हमारे अहनाफ के जो उलमा हैं, मुक्तदर उलमा, हमारे अइम्मा, उन्होंने तो यही फैसला किया है कि भाई औरतों को जमात करनी भी नहीं चाहिए, उनकी जमात खुद मकरूह है, और अगर करती भी हैं तो उनके इमाम को भी आगे नहीं निकलना चाहिए, वो सफ़ों के दरमियान ही में रहेगा, इमाम भी आगे नहीं होगा। ये सारे शराइत हैं। तो इससे बेहतर है कि औरतों को ये नमाजें जमात के साथ में नहीं अदा करनी चाहिए। नमाज से पहले तरीका बता दो उनको कि भाई नमाज का ये तरीका है और इस तरीके से पढ़ो, ताकि फिर सभी लोग उसका फॉलो कर ले तो ठीक है, मगर इस तरीके से औरतों को नहीं करना चाहिए। ठीक, गलत है ये चीज़। और साथ साथ में इसी के ताल्लुक़ से जो एक और औरत ने सवाल ये किया था कि वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को तालीम मिले, छोटे बच्चे हैं, घर में और कोई नहीं है, सिर्फ माँ और बच्चे हैं, तो माँ जब नमाज का वक्त होता है तो इतने ज़ोर से पढ़े ताकि ये अपने छोटे बच्चों को मालूम हो कि भाई नमाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या इस तरीके से ज़ोर से नमाज पढ़ सकते हैं कि बच्चों की तालीम? देखिए, जहाँ तक तालीम का सवाल है
تو کوئی ضروری نہیں کہ تعلیم نماز کی تعلیم نماز ہی میں دی جائے. پریکٹیکل کر کے جی آپ اپنی ریئل نماز پڑھ رہے ہیں تو ریئل نماز میں آپ جو تعلیم کا خیال کر رہے ہیں تو یہ تو غیر کی طرف توجہ ہو گئی کہ آپ اس کے وہ کب اس کا مسئلہ ہے کہ وہ بالکل ایسی پوزیشن ہو کہ کوئی آدمی ابھی نو مسلم بنا ہے, اس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے اور اس کو نماز پڑھنی ہے, تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھائی اس کی نماز کے اندر کسی آدمی کو اپنا فالو کر لے کہ وہ پڑھے اور اس کا فالو کر لے, تو اس کی اجازت دی گئی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو نماز کے ذریعے سے اس طریقے کی تعلیم کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نماز سکھانا چاہتے تو نماز کے باہر آپ مدرسہ قائم کیجئے, بچوں کو بٹھائیے اور پھر طریقہ نماز بتائیے کہ بھائی نماز میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے, اس میں یہ پڑھا جاتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے, اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. کیا ضروری کہ آپ نماز ہی کے اندر اس تعلیم کو قائم کریں؟ تو یہ نہیں ہے, وہ تو صرف امی کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ غالباً اب تو کوئی امی نہیں ہے, بالکل نو مسلم ہو اور جس کو کچھ معلوم نہیں تو چند نمازوں کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ ہر طرح کی نماز میں دوسرے کی اقتدا کر سکتا, باقی نہیں ہے. ٹھیک. تو والا درشکوں اور ناظرین, یہ کل کے آپ کے سوالات تھے جو میرے ساتھ مولانا ایوب صاحب تشریف فرما تھے, اور ان کی موجودگی میں جو سوالات رہ گئے تھے وہ ہم نے زیر بحث کر لیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے ہم گجراتی میں بات کریں گے. تو જેટલા بھی ભાઈઓ છે બહેનો છે તેમને મારી અપીલ છે કે અમે તમારાથી થોડાક સમય માટે ટૂંક સમય માટે છૂટા પડીએ, એટલે કે બ્રેક લઈને બ્રેક પછી તરત મળીશું એવી આશા રાખીને કે તમે જરૂરથી તમારા પ્રશ્નો અમારા સુધી પહોંચાડશો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તઆલા વબરકાતુહુ.